कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, यू कैन आस्क मी, राइट? सो हमने लिया था ये, दिस इज प्योर वाटर, एक बार रिवीजन ही है, एंड दिस इज 5 मोलर sugar solution. A and B. Out of these solution, which is hypotonic, which is hypertonic? Raise your hands. जल्दी से, और पता था आपको क्या है? जल्दी से हाथ खड़ा करो. वाटर है और साथ में शुगर सोल्यूशन है. कौन सा हाइपो, कौन सा हाइपर? हाँ जी बेटा, there is one girl on the second bench. हाँ जी बेटा. No, solution A is hypotonic and B is hypertonic. Hypertonic. Hyper means ज्यादा. बिल्कुल ठीक है बेटा, बैठो. Hyper means more. What is more? Tonic means यहाँ पे tonic जो है that is solute. Right? जब ये याद, और hypo means less. Hypo कम, hyper ज्यादा. Hypo means less, hyper is more. So if we say hypotonic, but this is a comparable term. दो solutions होंगे तभी हम कहेंगे कि ये hypo, ये hyper. अगर single solution दे दे हमें ये B वाली, we cannot say anything. So hypotonic means has less solute as compared to the other solution. That is hypotonic. And hypertonic yes, which has क्या लिखेंगे? Which has More solute. more solute as compared to other solution. That is hypertonic. मुझे बताइए बेटा, salt solution, here it has salt plus water. Which is solute? Which is solute? Salt. Salt is the solute and water is the solvent. Solvent. Then iodine solution. Iodine and alcohol. Iodine is soluble in alcohol. So, what is alcohol? Solute or solvent? Solvent. Solvent. Although बेटा जो iodine है वो भी liquid है और जो alcohol है वो भी liquid है. But because solute, solution में solute और solvent अगर देखें तो solvent is more than the solute. So when we make iodine solution, amount of iodine is less than the amount of alcohol. So the amount which is taken as less, that is called as solute. So iodine is solute and alcohol is solvent. Solvent. Is it okay? So but in living organisms, in plants, in plants, if a cell is placed in plant cell, this is plant cell, it is placed in hypotonic solution, what will happen? Endosmosis ki exosmosis? Everybody जोर से बोलो बेटा, पीछे वाले बच्चे भी. What will happen? Endosmosis की exosmosis? Endosmosis. Because water moves from
hypotonic towards hypertonic. hypertonic solution. And when the water moves inside endosmosis, what will happen? The cell will swell or cell will shrink? Swell. Cell swell. Cell swell. If there is plant cell placed in hypertonic solution, exosmosis, hyper solute बहुत है as compared to inside of the plant, inside of the cell, बाहर solution में solute ज़्यादा है, therefore there occurs exosmosis. तो हम यहाँ पे कहेंगे कि in this case what is the concentration of cell sap? हाइपोटोनिक की हाइपरटोनिक? Hypertonic. हाइपो है ना. अगर हम बाहर की सोल्यूशन को हाइपर कह रहे हैं, इट मीन्स द ऑपोजिट सोल्यूशन इज हाइपो. इज इट ओके एवरीबडी? So exosmosis, and when there occurs exosmosis, then the cell shrinks or expands? It shrinks. It shrinks. ठीक है? And if ये ध्यान से मेरी बात सुननी है, if exosmosis continues, अगर exosmosis continue रहती है and the cell protoplast या cell membrane gets separated, क्योंकि सेल वॉल तो रिजिड है बेटा, वो तो हिलेगी नहीं, बाकी अंदर का सेल जो है वो श्रिंक कर जाएगा. ठीक है, इधर ध्यान दो बेटा. The cell membrane gets separated from cell wall. It is called as, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? यहाँ पे देखो, this is cell wall and बाकी अंदर जो है वो सेल वॉल से सेपरेट हो गए, वो श्रिंक कर गया. ये वैक्यूल है, ये न्यूक्लियस है, बाकी सारे मींस इट गेट्स श्रिंक फ्रॉम द सेल वॉल. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को? रेज योर हैंड्स. श्रिंकेज ऑफ द प्रोटोप्लास्ट, है ना. प्लाज्मा मेम्ब्रेन और उसके अंदर के स्ट्रक्चर को बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट. ये क्वेश्चन आना है आपके एग्जाम में. श्रिंकेज ऑफ द प्रोटोप्लास्ट फ्रॉम द सेल वॉल इज कॉल्ड एज. हाँ जी, एक बच्चे का हाथ पीछे खड़ा है. हाँ जी बेटा, बिल्कुल ठीक है. दिस इज कॉल्ड एज प्लाज्मोलिसिस. दिस इज प्लाज्मोलिसिस. Lysis means breakdown. This is plasmolysis, right? Breakdown of या separation of protoplast. Definition लिख लो. Plasmolysis की separation of protoplast from the cell wall. Separation of protoplast from the cell wall due to continuous exosmosis. Due to continuous exosmosis. And what is the importance of exosmosis, beta? Can you tell me any importance of exosmosis? Yes, raise your hands. एक्सोस्मोसिस आपने कहाँ पे देखी है कभी? Have you ever observed?
हाँ, खड़े होके बेटा, ऐसे नहीं। आपने कभी बेटा ऐसे देखा है कि भाई कोई आपकी दीवार पे कोई प्लांट सा लग रहा है, लेट्स से छोटा सा पीपल का प्लांट लग रहा है, तो आप उसमें क्या करते हो, उसकी जड़ों में नमक डाल दिया, उसकी रूट्स के ऊपर ढेर सारा नमक डाल दिया। द पीपल प्लांट विल गेट, या जो भी प्लांट आपकी घर की छत पे या दीवार पे लग रहा है, इट विल गेट किल्ड आफ्टर सम टाइम, वो मर जाएगा पौधा। क्यों? When we put lot of salt, what will happen? The external solution, जो उसके बाहर की solution है, वो कैसी हो जाएगी? हाइपो की हाइपर? हाइपरटोनिक हो जाएगी। और पानी प्लांट के अंदर जाएगा कि बाहर आएगा? बाहर आएगा। And due to loss of water, all the cells of the plant gets plasmolized, and when the cells gets plasmolized, the cell gets killed. ठीक है? And when the cells gets killed, the plant gets killed. ठीक है? यहाँ पे कर्टन के पास जो फर्स्ट बेंच पे लड़का बैठा है बेटा, इसको बुलाओ जरा माइक के पास। डीजल पंप नहीं है। हाँ जी बेटा, इधर आजा, माइक के पास आजा बच्चा। हाँ जी, एक तो मैंने प्लाज्मोलिसिस की आपको एग्जांपल बताई, और बताओ और क्या इम्पोर्टेंस है प्लाज्मोलिसिस की? एक मैंने क्या बताया, पहले वही रिपीट कर दे, उससे फिर आपको आ जाएंगी। मैं put salt on any tree like people. After some time the tree will die. The people will die due to Plasmolysis. due to plasmolysis या continuous exosmosis। ठीक है, एक तो ये हो गई। और कोई एग्जांपल बेटा? चलो बैठो बैठो, एक मैं और बताती हूँ आपको बेटा। जो गोल्फ ग्राउंड्स है, गोल्फ ग्राउंड्स में हम रेगुलर सॉल्टिंग करते रहते हैं ताकि वहां पे कोई वीड्स ना ग्रो करे। ठीक है। तीसरी चीज और क्या है कि वी कैन टेस्ट, हमें सेल्स दे दिए कुछ प्लांट्स के और कहा कि भी देखो ये जिंदा है कि नहीं। इफ द सेल इज शोइंग प्लाज्मोलिसिस, अगर हमें लगता है कि श्रिंक हो रहे हैं कुछ, ठीक है, तो हम कहेंगे अभी तक तो जिंदा है। बट अगर वो कुछ शो नहीं कर रहे, सो प्लाज्मोलिसिस इज शोन ओनली बाय लिविंग सेल्स बट इट कॉजेज डेथ ऑफ द सेल्स। इज इट ओके? और आप क्या करते बेटा, आपने कभी देखा है कि आप जब अचार चटनीज बनाते हो तो उसमें बहुत सारी शुगर और सॉल्ट डलता है? डू यू नो दैट? है ना। और अपनी मम्मा से पूछना घर जाके, आज सबने पूछ के आना है कि कई बार क्या होता है बेटा कि वो अचार चटनी जो है ना, थोड़ी सी ऊपर ना उसके फंगस लगने शुरू हो जाती है। कुछ भी आपने बनाया, फंगस, इसमें इन्फेक्शन हो, तो फिर आपकी मम्मा क्या करती हैं कि उसकी ऊपर की लेयर, फंगस की लेयर उतार दी, तो भी खराब सा थोड़ा सा था, वो निकाल के बाहर फेंक दिया और उसमें और थोड़ी सी चीनी और नमक डाल दिया। इससे क्या फर्क पड़ेगा? क्या दोबारा माइक्रोब्स ग्रो नहीं करेंगे उस पे? और जो फंगल के स्पोर्स रह गए उसका क्या करें? खड़े होके बोलो, खड़े होके, ऐसे नहीं मुझे पता चल रहा। क्या होता है, दोबारा से सुन लो कि लेट्स से आपकी मम्मा ने आम की चटनी बनाई, बहुत ही टेस्टी थी, क्या करें, बट उसमें आपने एक दिन देखा कि उसके ऊपर एक वाइट सी कॉटनी आउटग्रोथ है, फंगस की आउटग्रोथ है। तो आपने मम्मा को कहा कि मम्मा ये सारी चटनी जो है ना ये बाहर घेर दो। तो आपकी मम्मा ने कहा नहीं, बाहर थोड़ी घेरेंगे, इतनी हमने मेहनत की है, इसके ऊपर की लेयर निकाल देंगे फंगस की और इसमें हम थोड़ा सा और चीनी और नमक डाल देंगे। ठीक है, तो क्या उससे, तो आपके मन में ये नहीं आएगा कि जो फंगस इसके बीच में ऊपर वाली तो निकाल दी, अंदर भी तो हो सकती है, तो स्पोर्स का क्या होगा? क्या हमें खराब नहीं करेंगे वो? यस, टेल मी एनी स्टूडेंट। हाँ जी बेटा, एक स्टूडेंट का हाथ खड़ा है। हाँ बेटा, खड़े होके बोलो। हाँ, आप बता दो ना। फंगस विल डाई ड्यू टू प्लाज्मोलिसिस। बिल्कुल ठीक है, बैठो। क्योंकि जब हमने उसमें और नमक और शुगर डाल दी तो जो फंगल स्पोर्स होंगे दे ऑल विल बी किल्ड ड्यू टू प्लाज्मोलिसिस। सो वी से
Plasmolysis is a method to disinfect certain pickles, chutneys, etc. ठीक है, लिख लो फटाफट से. पहला पॉइंट, प्लाज्मोलिसिस इज यूज्ड. ये है एडवांटेजेस ऑफ प्लाज्मोलिसिस. इट इज यूज्ड to kill small plants. It is used to kill small plants growing on the walls, roofs, etc. Growing on the walls, roofs, etc. It is done by adding lot of salts in their roots. It is done by adding lot of salts in their roots. Second point आ जाइए. Plasmolysis is shown by. Plasmolysis is shown by living cells only. Plasmolysis is shown by living cells only. Third point है food item. Plasmolysis is shown by living cells only. ठीक है बेटा. तो बेटा हमेशा नहीं कि प्लाज्मोलिसिस से सेल मर ही जाएगा. There is temporary plasmolysis, there is permanent plasmolysis. दो स्टेजेस होती है. टेम्परेरी के बाद सेल रिवाइव कर जाता है, परमानेंट के बाद सेल मर जाता है. नेक्स्ट एक और आ जाता है. Certain food items such as pickles and chutneys. Certain food items such as pickles and chutneys are consists of lot of salts and sugars. Consists of lot of salt and sugar. Which adds taste as well as disinfects the food items. Disinfects the food items. So this is about plasma. This is about plasmolysis. उसके बाद बेटा एक आ जाता है न्यूक्लियस. Who first observed nucleus? Who first discovered nucleus? हाँ जी बेटा, कौन बता रहा है? Raise your hands. First रो में से दरवाजे की तरफ जो लड़के बैठे हैं. हाँ जी, सेकंड बेंच पे जो लड़का बैठा बेटा, सेकंड बेंच. हाँ, रॉबर्ट ब्राउन. बिल्कुल ठीक है, बैठो जरा. So nucleus was discovered by रॉबर्ट ब्राउन. और थोड़ा सा मैं आपको और बता देती हूँ. इन रूट सेल्स ऑफ ऑर्किड्स. ऑर्किड्स प्लांट्स है, उनकी रूट सेल्स में रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस सबसे पहले देखा. ठीक है. न्यूक्लियस जो है, इट इज कॉल्ड एज जेनेटिक ऑर्गेनेली. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज hereditary organelle. It is called as genetic organelle. It is called as hereditary organelle. Why it is called as genetic organelle? Why it is called as genetic? ऐसे नहीं खड़े होके. Raise your hands and then tell. हाँ जी, जो माइक के पास लड़का बैठा हुआ है बेटा, the students sitting on the first bench near mic. दोनों में से कोई खड़े हो जाए. हाँ जी आप खड़े हो जाओ. हाँ. Why it is called as genetic organelle? It contains genes. Because it contains genes. उससे क्या फर्क पड़ा? जीन्स तो है,
जीन्स तो है, चलो एक ये पॉइंट हो गया। और मेन पॉइंट क्या है? आप बैठो। एनी अदर? सीधे होके बैठो बेटा, टांग पे टांग रख के नहीं। यू आर द यंग पीपल। सीधे बिल्कुल, हिलना ज्यादा नहीं, कमर सीधी रखो थोड़ा सा। एनीवन, एनी गर्ल, एनी बॉय, एनी स्टूडेंट? बेटा जेनेटिक ऑर्गेनेली का मतलब है बिकॉज इट कंट्रोल्स all the functions of the cell, as it controls all the functions of the cell, इसलिए हम इसको बोलते हैं जेनेटिक ऑर्गेनेल। ठीक है, पता होना चाहिए। जेनेटिक्स मतलब जो फंक्शनिंग को कंट्रोल करे। हेरिडिटरी ऑर्गेनेल ये तो सबको पता होगा। यस, ऐसे हमने सुना ही नहीं, ऐसे नहीं सुना। हाथ खड़ा करके, Yes, raise your hands. Yes, पीछे सेकंड बेंचेस पे जो गर्ल्स बैठी है पीछे मैम के साथ जो बैठी हैं। Yes. आजा आगे आजा भाग के आओ बेटा फटाफट। हाँ जी, why it is called as hereditary organelle? नहीं, वो तो जीन्स हो गई। हेरिडिटरी ऑर्गेनेली क्यों कहते हैं? जीन से रिलेटेड नहीं है ये। इनहेरिट करना। अच्छा मेरी बात सुनो, इनहेरिट करना क्या होता है? इंग्लिश का वर्ड है इनहेरिट करना। व्हाट डू यू मीन बाय इनहेरिट करना? कि ये चीज हमने इनहेरिट की है। किससे इनहेरिट की है? पेरेंट्स से इनहेरिट की है। ठीक है, अब एक सेल है, वो दो में डिवाइड किया, तो जो पहला सेल था उसको क्या कहेंगे? पेरेंट सेल। और ये दो डॉटर सेल्स। ठीक है, तो आपने अपने पेरेंट्स से क्या इनहेरिट किया है? जब फर्टिलाइजेशन, अगेन आपने 8th में किया है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जब फर्टिलाइजेशन हुई थी, बेटा आप ही बताओ, थोड़ा सा आपको क्लियर होगा, बाकियों को भी। जब फर्टिलाइजेशन हुई थी तो किन चीजों की फ्यूजन हुई थी? मेनली गैमीट्स की, एग एंड स्पर्म की फ्यूजन हुई। उनमें कौन सा स्ट्रक्चर मेनली फ्यूज हुआ था? न्यूक्लियस बेटा, न्यूक्लियस। स्पर्म तो आप कुछ देता ही नहीं है अपने न्यूक्लियस को छोड़। ठीक है, बैठो, मैं सब बताती हूँ। व्हाई इट इज कॉल्ड, बैठो बेटा बैठो, व्हाई इट इज कॉल्ड एज हेरिडिटरी ऑर्गेनेली? बिकॉज इट ट्रांसफर्स characters from one cell या from parents to their offspring। अगर बेटा दो गैमीट्स में से हम न्यूक्लियस निकाल दें और उनका सिर्फ साइटोप्लाज्म मिक्स करें, पहली बात तो जाइगोट बनेगा ही नहीं। दूसरा, अगर बन जाएगा तो कैरेक्टर्स, किसके कैरेक्टर्स कहाँ गए कुछ नहीं पता चलेगा। It is the nucleus only which transfers characters from parents to offspring। ठीक है, एक तो न्यूक्लियस सारे सेल के फंक्शंस कंट्रोल करता है, that is why it is called as genetic organelle। और दूसरा, because it is the nucleus which transfers characters from parents to the offspring, that's why it is called as hereditary organelle। ठीक है बच्चे, इज इट ओके? ठीक है जी। चल बेटा, इधर जो कर्टेन्स के पास फर्स्ट बेंच पे जो लड़का बैठा है, हाँ जी, जो उठा था वो नहीं, दूसरा आपके साथ वाला बेटा, साथ वाला। हाँ जी बेटा, जल्दी से बता दे, न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं? What is the other name of nucleus? क्या क्या बोलते हैं बेटा? तुम नहीं बताओगे, लेट्स हिम चेक। इट इज कॉल्ड एज ब्रेन ऑफ द सेल। ब्रेन ऑफ द सेल। तो चलो, पर मैंने क्या बताया आपको? बेटा पता क्या बात है कि आप कॉन्टिन्यूसली जो है ना अपने साथ वाले को, उसने तो पिक फिर भी कर लिया, उसका एक काम तुम्हारी तरफ था, एक मेरी तरफ था, तो उसके तो दिमाग ने पिक कर लिया, नुकसान हो गया आपका।
अभी खड़े रहना, वो देखो एक पीछे बच्चा बताएगा तो फिर आपने सुन के। हाँ जी बेटा बोलो जल्दी से। इट इज कॉल्ड एज जेनेटिक ऑर्गेनेली। और आगे आगे बोल जरा, आगे भाग के जल्दी से आना है। हाँ। इट इज कॉल्ड एज जेनेटिक ऑर्गेनेली एंड हेरिडिटरी ऑर्गेनेली। अच्छा बेटा अब मुझे ये भी बता दो कि न्यूक्लियस में ऐसा क्या है, वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन फाइबर्स। बिल्कुल ठीक है, बैठो बोथ ऑफ यू सिट डाउन। चलो अपनी सीट्स पे चलो। अब हम थोड़ा सा ये देखिए, न्यूक्लियस हैज, ये देखो बेटा, न्यूक्लियस हैज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। दिस इज, बातें बिल्कुल भी नहीं बेटा। न्यूक्लियस हैज टू लेयर्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। This nuclear membrane has nuclear pores. और बेटा इन द रीजन ऑफ न्यूक्लियर पोर्स दोनों मेम्ब्रेन्स एक दूसरे के साथ जुड़ी होती है। दे आर कॉन्टिन्यूअस। At some places the outer membrane is continuous with, ये क्या है बेटा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। This is endoplasmic reticulum. और ये देखो कि इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर क्या अटैच्ड है? राइबोसोम। तो ऐसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम क्या बोलते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बिल्कुल बात ठीक है। दिस इज रफ एंडोप्लाज्म। ठीक है, दिस इज आउटर मेम्ब्रेन, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। दिस इज इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। ये जो स्पेस है इसको हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर। पेरी न्यूक्लियर स्पेस, जो दो मेम्ब्रेन्स के बीच में है। पेरी न्यूक्लियर स्पेस। दिस इज न्यूक्लियर पोर। ये जो है दिस इज RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और अंदर जो है क्रोमेटिन। क्रोमेटिन फाइबर्स। दिस इज क्रोमेटिन फाइबर्स। और यहाँ पे डार्क कलर्ड स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। दिस इज न्यूक्लियस। ठीक है, दिस इज क्रोमेटिन। क्रोमेटिन। दिस इज न्यूक्लियस। और ये साथ में सारा है न्यूक्लियोप्लाज्म। प्लाज्म। मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। अब बेटा जो नॉन डिवाइडिंग सेल्स है, जो डिवाइड नहीं कर रहे, नॉन डिवाइडिंग सेल्स, दे हैव क्रोमेटिन। ये जो आपको दिखाया है इस तरह से क्रोमेटिन। इसके बाद जो डिवाइडिंग सेल्स है बेटा, डिवाइडिंग सेल्स में ईच क्रोमेटिन, हर क्रोमेटिन डबल है। हर क्रोमेटिन की एक पढ़ेगा तभी। ये देखो बेटा, यहाँ पर जो नॉन डिवाइडिंग सेल है वहां पे जो क्रोमेटिन है वो इस तरह से है, लेटस से। दिस इज क्रोमेटिन। बहुत ध्यान से समझो, जो डिवाइडिंग सेल्स है वहां पे
हर क्रोमेटिन ने अपना डबल बनाना है, ठीक है। और उसके बाद ये कंडेंस कर रहे हैं, कंडेंस में शॉर्टन हो रहे हैं, थिक हो रहे हैं। और ये इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाए। बड़ा ये तो कोई नहीं। This is called as chromosome। लट्टे मार के रंग है। और इन दो को क्या बोल देते हैं? These are sister chromosomes। ठीक है। अब क्वेश्चन आ जाता है बेटा, एवरीबडी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, इधर ध्यान दो बेटा, बातें नहीं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रोमेटिन एंड क्रोमोसोम? लिख लो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, क्वेश्चन लिखो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रोमेटिन and chromosome? Chromatin is uncoiled, long, thin, uncoiled, long, thin, thread-like structures. Thread-like structures. Now please repeat it. Chromatin is long, uncoiled, thin, thread-like structures. Long, uncoiled, thin, पतले जो है thin. Thread-like structures. Thread-like structures composed of DNA. Composed of DNA. What is the full form of DNA? Deoxyribonucleic acid. बिल्कुल ठीक। That is chromatin. उसके बाद आ जाइए क्रोमोसोम। नेक्स्ट आ जाइए क्रोमोसोम। Chromosome is highly condensed. Chromosome is highly condensed, thick and distinct structure. Chromosome is highly condensed, thick, small, thick भी है, small भी है, and distinct structure formed of DNA. इसी में लिख लो, chromosomes are observed. Chromosomes can be observed. Chromosomes can be observed in the dividing cells. Where each chromosome has two sister chromatids. Where each chromosome has two sister chromatids. Two sister chromatids. CHROMATIDS chromatids. ठीक है बेटा। अब बात आ जाती है बच्चे, अब आपके क्रोमेटिन और क्रोमोसोम का पता चल गया। क्रोमोसोम कंडेंस्ड फॉर्म है, डिस्टिंक्ट है, क्रोमेटिन लॉन्ग थ्रेड-लाइक स्ट्रक्चर्स। अब एक चीज, हाउ न्यूक्लियस controls various functions of cell. How nucleus control
वेरियस फंक्शंस ऑफ द सेल। तो बेटा न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट है? क्रोमेटिन। क्रोमेटिन और जनरल हम इसको भी क्रोमोसोम ही कह देते हैं। वैसे क्रोमोसोम हमें डिवाइडिंग सेल में मिलते हैं, बट जनरली हम दोनों को सिनोनिम ही करके चलते हैं, क्रोमेटिन और क्रोमोसोम। दे हैव जीन्स, ये ध्यान से समझना है। इनके पास क्या प्रेजेंट है? जीन्स है। ठीक है, लेट अस से ये क्रोमेटिन है, एक जीन ये है, लेट अस से एक जीन ये है, ये जीन है, इस तरह से। तो लिख लो जीन इज ए small segment of the chromosome. Gene is a small segment of chromosome. Segment, segment, segment of chromosome. When required, बेल अगर बच जाएगी तो 2 मिनट रुक के जाना, ये खत्म करके जाना। When required, the specific gene forms mRNA, messenger, इसको नहीं पता वो लिख लो, messenger ribonucleic acid। When required, हमेशा ही नहीं सारी जीन्स mRNA बनाएगी, नहीं। जब सेल को चाहिए तो स्पेसिफिक जीन फॉर्म्स mRNA। और ये देखो बेटा, इधर mRNA यहाँ पे बना, 2 मिनट की बात है, इसलिए रुक के जाना है, बस 2 मिनट। mRNA जो है, mRNA comes out, लिख लो फटाफट से, mRNA comes out of the nucleus, mRNA comes out of the nucleus and joins with various ribosomes. mRNA न्यूक्लियस से बाहर आया, सेल में बहुत सारा साइटोप्लाज्म था, वहां पे राइबोसोम्स के साथ जुड़ गया and synthesize proteins and synthesize specific proteins दोबारा से मैं बता रही हूँ, mRNA बना, जीन ने बनाया, mRNA न्यूक्लियस से बाहर आया, ये राइबोसोम्स के साथ ज्वाइन किया और क्या बनाया इसने? राइबोसोम्स के साथ ज्वाइन करके क्या बनाया? जोर से बोलो। प्रोटीन्स बनाए। प्रोटीन। हाँ, इतनी लंबे खींचने की बात नहीं है। और फिर लास्ट लाइन, many of the proteins, लास्ट लाइन है, लिख लो जरा। many of the proteins act as enzymes. Many of the proteins act as enzymes which control different reactions in the cell. Which controls, many proteins form enzymes that control different reactions in the cell. तो अब बेटा मुझे सिंपल सी ये बात बता दो, रेज योर हैंड, कि प्रोटीन बनाने की, कॉपीज बंद कर दो, प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन कहाँ पे थी? mRNA में थी। mRNA में इंफॉर्मेशन कहाँ से आई थी? न्यूक्लियस में क्या चीज थी? न्यूक्लियस में क्या चीज थी? डीएनए, जीन्स थी। ठीक है, तो बहुत चलो ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच।
हाँ, ये ना